Hello students, here we are in Rishikul Bela Convent School right now going to read a story, The Woodcutter and the Axe in your library period. Okay children? So children, this is very fantastic and marvelous story, but you must promise me to read the story very well, okay, and understand the moral of this story. So long ago there lived a woodcutter in a small village. He was sincere in his work and very honest. Every day he went into the nearby forest to cut trees. He brought the wood back into the village and sold them to a merchant and earned his money. He earned just enough to make a living, and he was satisfied with his simple living. One day, while cutting a tree near a river, his axe slipped out of his hand and fell into the river. The river was so deep he could not take it on his own. He had only one axe that fell into the river. He started to worry. He will not be able to earn his living now. He was very sad and prayed to the God. He prayed sincerely, and God appeared in front of him. And God asked, "What is the problem, my son?" The woodcutter explained the problem and requested the God to get his axe back. The God stretched his hand deep into the river and took out a silver axe and asked, "Is this your axe?" The woodcutter looked at the axe and said, "No." So the God put his hand back deep into the water again and took a golden axe and asked, "Is this your axe?" The woodcutter looked at the axe and said, "No." The God said, "Take a look at it again, son. It is a very valuable golden axe. Are you sure this is not yours?" The woodcutter said, "No, it's not mine. I cannot cut trees with a golden axe. It's not useful to me." God smiled and finally put his hand into the water again and took out his iron axe and asked, "Is this your axe?" To this the woodcutter said, "Yes, this is mine. Thank you." The God was very impressed with his honesty, and she gave him his iron axe and also the other two axes as a reward for his honesty. So children, what we get moral from this story? Always be honest. Honesty will always be rewarded. Always be honest. Honesty will always be rewarded. So children, now we will learn the story to understand in Hindi. बहुत समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है। वहाँ एक लकड़हारा रहता था एक छोटे से गांव में। वह बहुत ही
ईमानदार और हार्ड वर्कर था, मेहनतकश था। रोज़ रोज़ वह लकड़ी काटने नज़दीक के फॉरेस्ट में, जंगल में जाता था और वहाँ से लकड़ी काट कर एक व्यापारी को बेचता था और उससे मिले हुए पैसों से अपने घर को बहुत खुशी से चलाता था और वह अपने जीवन से संतुष्ट था। एक दिन जब वह लकड़ी काट रहा था, वो जंगल नदी के किनारे पेड़ था, जंगल का पेड़, उस पे काट रहा था, तो उसका जो कुल्हाड़ा है वो नदी में गिर गया। लकड़हारा बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसका कुल्हाड़ा जिससे वो लकड़ी काटता था वो तो नदी में गिर चुका था। अब वो परेशान था कि लकड़ी कैसे काटेगा, और लकड़ी नहीं कटेगी तो बिकेगी नहीं तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो घर कैसे चलेगा। और इस परेशानी से वह भगवान को याद करने लगा, ईश्वर को याद करने लगा और ईश्वर से कहा, अब मैं क्या करूं। और ईश्वर ने उसकी इस चिंता को दूर करते हुए उसको आशीर्वाद रूप में प्रकट हुए उसके सामने और बोले, क्या बात है। उसने बताई, लकड़हारा ने मेरी कुल्हाड़ी खो गई। गॉड ने अपना हाथ बहुत बड़ा किया, भगवान ईश्वर ने अपना हाथ बहुत बड़ा किया और नदी में से एक चांदी का कुल्हाड़ा निकाला और कहा, ये आपका है। लकड़हारे ने कहा, नहीं। ईश्वर ने फिर से अपना हाथ नदी में डुबाया और दूसरी बार सोने का कुल्हाड़ा दिखाया और कहा, ये आपका है। लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी नहीं है, मैं इससे लकड़ी काट भी नहीं पाऊंगा, यह तो सोने की है। ईश्वर बहुत प्रसन्न थे क्योंकि यह लकड़हारा लालची नहीं था, बहुत ईमानदार था। फिर ईश्वर ने अपना हाथ डुबाया पानी में और उसकी कुल्हाड़ी लोहे की निकाल के उसको दिया और कहा कि आप बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार हो, इसलिए आप ये दोनों कुल्हाड़ियाँ भी ले जाओ क्योंकि ये तुम्हारा इनाम है। और खुशी खुशी लकड़हारा अपने घर चला गया और ईश्वर भी। तो चिल्ड्रेन, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है, सीख मिलती है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए और परिश्रमी भी होना चाहिए क्योंकि ईमानदारी और परिश्रम दोनों ही हमें बहुत कुछ देते हैं और हम कभी हार नहीं सकते अगर हम ईमानदार और परिश्रमी हैं। ओके चिल्ड्रेन, आई थिंक आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर रीड करेंगे। हमारे सुनाने के अलावा भी स्टोरी को आपको रीड भी करना है। बहुत छोटी सी स्टोरी है और बहुत ही सुंदर स्टोरी है। आपको सीखने, लर्न करने और रीड करने कहीं भी किसी भी बात में परेशानी नहीं होगी, बल्कि बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस स्टोरी को पढ़ने में बहुत ही आनंद का अनुभव करेंगे। थैंक यू।